Good afternoon, students. In today's class, we will learn about the safety precaution while working on electrical system. यानी कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई भी वर्क करेंगे या फिर उसका यूज करेंगे तो उस टाइम क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए वो इस चैप्टर में या इस टॉपिक के अंदर हम उसके बारे में हम लर्न करेंगे. ठीक है. Let us start safety precaution while working on electrical system. First one is avoid water at all time when working with electricity. Always avoid water. Okay? Because water is the conductor of electricity. Conductor क्या होता है? Conductor means in which current ईजली फ्लो, यानी कि जिसमें से करंट ईजली फ्लो हो जाता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं. और इंसुलेटर होता है जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है. ठीक है. तो व्हेन आवर हैंड इज वेट व्हाट हैपन, वी मे गेट ए इलेक्ट्रिकल शॉक. सो ऑलवेज अवॉइड वाटर एट ऑल टाइम व्हेन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी और यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके. यानी कि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो या उसमें कोई भी काम कर रहे हो तो उस टाइम हमारे हैंड वेट नहीं होनी चाहिए. ओके. नेवर टच और ट्राई रिपेयरिंग एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सर्किट विथ वेट हैंड. इट इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नेवर टच. ओके. नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट with wet hand. In the bathroom when we use geyser, don't switch on or switch off the geyser on or off. Okay. What will happen if we touch with a wet hand? We may get any electric shock. Electric shock क्या होता है? When we get contact with the electricity, we get a shock, that is called electric shock. Okay. Next, never use equipment which damaged wire, damaged insulation or broken plugs. What will happen when we use any damaged wire? Okay. In this picture you can see this wire is damaged. Okay. इसका इंसुलेशन खराब हो गया तो व्हेन वी टच दिस वायर वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक. ओके. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज द प्लग. ये प्लग इसका टूटा हुआ है. ठीक है. तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो इट मे गेट शॉक और इट मे गेट एनी इलेक्ट्रिक फायर. ओके. In this picture you can see this picture is very good insulation. This wire is very good insulation. So always use wire with good insulation. Okay. Next, always turn off the main switch before any repair work. It is also a good idea to put up a sign on the service panel so that nobody turn the main switch on by accident. Okay. In this picture you can see this is the main switch. इसको हम main switch बोलते हैं. ओके. main switch ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है. तो क्या करना है? Always use main switch. main switch यूज करेंगे तो क्या होगा? When we use main switch, if any equipment may get fire या may get electric shock, then what will happen? We switch off this switch. Okay. then what will happen? सप्लाई क्लोज हो जाएगी. ठीक है. यानी कि आगे सप्लाई नहीं जाएगी अगर हम इसको क्लोज कर देंगे. तो ऑलवेज टर्न ऑफ द मेन स्विच बिफोर एनी रिपेयर वर्क. यानी कि कोई भी रिपेयर वर्क कर रहे हैं तो इसको स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? आगे सप्लाई नहीं जाएगी. ओके. It is also a good idea to put up a sign on the accessories panel so that nobody turn the main switch on by accident. In this picture
In this picture you can see a signboard. What is this? This is so that when any repairing work is going on, if we paste this sign near the main switch, okay, तो क्या होगा, अगर हम इसको मेन स्विच के पास में पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, सभी को पता लग जाएगा कि आगे कोई रिपेयरिंग वर्क चल रहा है और इसको मेन स्विच को ऑन नहीं करना है. ओके, नेक्स्ट. Always use insulated tools while working. Okay, when working on any electrical system, always use insulated tools. Insulated tools का मतलब क्या है? When we use, in this picture you can see दिस इज प्लास. प्लास क्या हो? प्लास, और इसको प्लायर भी बोलते हैं. तो जो इसका हैंडल होता है वो इंसुलेटेड रबर का होना चाहिए. If we do not use insulated tools, what will happen? We may get electric shock. Okay, क्योंकि because this handle, when we put the when we use any plush, then we may get the electric shock through this handle if we do not use the insulated टूल्स. यदि इसका हैंडल इंसुलेशन का नहीं होगा तो क्या होगा, हम हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ओके, दिस इज द स्क्रू ड्राइवर. इन द स्क्रू ड्राइवर हैंडल इज ऑल्सो इंसुलेशन, या प्लास्टिक का या वो कांच का हो सकता है. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक टेस्टर. ओके, तो ऑलवेज यूज द इंसुलेटेड टूल्स वाइल वर्किंग. ओके, follow warning signs. Follow warning signs. This type of sign you have seen many times. Okay, and this is also the danger sign. Okay, तो जैसा यहाँ पे अगर कहीं ऐसा साइन देखो, तो जैसे कहीं इलेक्ट्रिकल लाइंस होती है वहाँ पे ऐसा साइन लगा होता है कि ये डेंजरस है, तो इसके मतलब इतने फीट दूरी हमें इससे मेंटेन करनी है. ओके, इतने डिस्टेंस हमें इससे मेंटेन करनी है. अगर हम इससे कम डिस्टेंस में हम इसके पास में चले जाएंगे तो वी मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक. सो ऑलवेज फॉलो द वार्निंग साइन. ओके, नेक्स्ट. ऑलवेज यूज appropriate insulated rubber gloves and goggles while working on any branch circuit or any other electric circuit. So what is this? This is about the when you work any electrical system, always use rubber gloves. ये क्या है? रबर ग्लव्स है. रबर ग्लव्स यूज़ करेगा तो क्या होगा, इसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा. जैसे इसमें पहले पिक्चर में देख सकते हो, ये बिना किसी ग्लव्स के वर्क कर रहा है, तो ई मे गेट एनी इलेक्ट्रिक शॉक. इन दिस पिक्चर इसने गूगल्स लगा रखे हैं. यहाँ इस समय देख सकते हो आप, ये रबर शूज़ पहन रखे हैं इसने, ये ग्लव्स पहन रखे हैं. तो ऑलवेज यूज सेफ्टी इक्विपमेंट. ये सेफ्टी इक्विपमेंट क्या है कि आप जब भी अगर किसी पे कोई इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हो तो ऑलवेज यूज ग्लव्स, शूज एंड गूगल्स. ओके, नेक्स्ट. नेवर ट्राई रिपेयरिंग इनर्जाइज्ड इक्विपमेंट. इनर्जाइज्ड इक्विपमेंट क्या होता है, ये इन द पिक्चर यू कैन सी व्हेन यू यूज़ लैपटॉप. तो जो लैपटॉप का अडेप्टर होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे तुम स्विच को ऑफ कर दोगे, ओके, तो इसमें एक लाइट ग्लो होती रहती है. जहाँ तक अगर लाइट ग्लो होती है तो इसमें कुछ चार्ज रहता है. जहाँ तक ये डिस्चार्ज नहीं होगा, मीन्स इसका जैसे तुमने स्विच को ऑफ कर दिया, लेकिन अगर थोड़ी देर, यानी कि जैसे मान सकते हो 5 मिनट या 2 मिनट तक अगर तुमने इसको ये इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. तो जो इक्विपमेंट है वो डी एनर्जाइज्ड का मतलब है कि जहाँ तक उसमें चार्ज हो उसको बोलते हैं एनर्जाइज्ड. ओके, ऑलवेज चेक दैट इट इज़ डी एनर्जाइज्ड फर्स्ट बाय यूजिंग टेस्टर. यानी कि टेस्टर के थ्रू इसको क्या करना है, आपको चेक करना है कि डी एनर्जाइज है या नहीं है. ओके, नेक्स्ट. नेवर यूज है एल्यूमिनियम और स्टील लैडर इफ यू आर वर्किंग एट हाइट और एट योर होम.
ओके। अगर तुम किसी हाइट पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम कर रहे हो तो ऑल नेवर यूज एल्यूमिनियम और स्टील लेडर। एल्यूमिनियम और स्टील लेडर क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें होके करंट फ्लो हो सकता है। ओके, तो नेवर यूज एल्यूमिनियम और स्टील लेडर, ऑलवेज यूज बैम्बू और वुडन और फाइबरग्लास लेडर। दिस लेडर इज मेड अप ऑफ wood, so always use ladder which is made up of wood, bamboo or fiberglass. Never use any aluminum or steel ladder. Okay, next, know the wire color code. वायर कलर कोड क्या होता है, जो वायर यूज हम अपने घर में यूज लेते हैं उनका कुछ फिक्स होता है कि लाइव वायर के लिए कौन से कलर का वायर यूज लेते हैं, या अर्थिंग के लिए कौन सा कलर का वायर यूज लेते हैं, या जो न्यूट्रल वायर होता है उसके लिए कौन से कलर का वायर यूज लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि जब भी अगर किसी जगह पर या किसी भी बिल्डिंग में अगर वायरिंग करवाएंगे तो अगर स्पेसिफिक कलर कोड में उस वायरिंग नहीं की हुई है तो जो भी कोई भी नया रिपेयरिंग करने आएगा तो उसको नहीं पता होगा कि कौन सा लाइव है। ओके, चेक करने के बाद पता लग जाएगा, लेकिन बिना चेक किए उसको पता नहीं लगेगा। इस वजह से ऑलवेज यूज द कलर कोड। कलर कोड में क्या है, जो रेड वायर है, रेड वायर ऑलवेज यूज लाइव वायर। लाइव वायर क्या है, लाइव वायर और पेश वायर मीन्स जिसमें होके करंट फ्लो होता है, या टेस्टर जिसमें टेस्टर ग्लो होगा। जो ग्रीन होता है, ग्रीन क्या यूज होता है ग्रीन का, ग्रीन ऑलवेज यूज अर्थिंग। ओके, ब्लैक यूज फॉर न्यूट्रल वायर। ओके, ब्लैक भी हो सकता है या फिर ग्रे भी हो सकता है, ये न्यूट्रल वायर के लिए यूज होगा। ठीक है, न्यूट्रल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हायर क्लास में कि न्यूट्रल क्या होता है, पेस क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है। ओके, so that this is the end of this topic. If you have any doubt you can ask. Okay, thank you.